Friends, welcome to my YouTube channel Bachcha Wala Maths. Today we'll do class 9 MCQs Math chapter 1 and 2 which are important for half yearly. So let's start the video. Question number 1, as you can see on your display, can we write 0 in the form of P by Q? So all of you know that 0 is a rational number. Yes, it can be written because it is a rational number. It can be written in 0 by 1 form. So yes, it is a rational number. So it will be yes. Okay. Next, in between two rational number there are, so remember always between two rational number or between any two number there are infinite numbers lying between them. Okay, so between two rational number or between any two number there are infinite rational number between them. Okay, next question, question number 3, in between two number. Okay, again I have written by mistake, I have repeated this question, so skip that question. Same question repeated. In between two numbers there are dash number, so it will be infinite only. Okay, then question number 4, you can see root over 9 is a dash number. Options are rational, irrational, neither rational, irrational, and none. So root over 9 is a perfect square root number, so it's square root over 9 is square root of 9 is 3, so it is a rational number. So option number A. Next question number 5, which of the following is a rational number? So out of this, see the option given below, the rational number. The options are root over 16, then root over 12 by 3, then root over 12 and 100. Sorry, not irrational, it is irrational. Which of the following is irrational? Okay, so here root over 16 is a rational number, so it is rejected. Then root over 12 by 3 is also a rational number because 3 1 ja 3 4 ja root over 4 is 2, so it is also rational. Root over 12 is irrational because root over 12 is 2 into 3 root over, then in this if we calculate, so it will be from this 2 1 2 will come out, so it will be 2 root 3, which is irrational, and the fourth term is also rejected because root over 100 is 10. Okay, so out of the given option the irrational number is root over 12. Then question number 6, 3 root 6 plus 4 root 6. You all of you know that जब भी तुम लोग को कुछ रूट ऐड करना हो ना, तो तुम लोग को ये वाला याद रखना है कि दोनों जब भी कोई टर्म ऐड होता है, यानी कि ऐसा कोई वेरिएबल एंड जो कंस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन वो जब ऐड होता है, तो इसका जो वेरिएबल है वो सेम होगा तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो रूट में केस में भी यही होता है। अगर 3 रूट 6 जैसे कि 3x प्लस 4x 7x होगा, राइट। और यहाँ पे अगर मैंने x का जगह यहाँ पे अगर मैंने y लिख दिया तो इट कैन बी एडेड बिकॉज द वेरिएबल आर डिफरेंट। सेम टू सेम इट हैपेंड विद रूट, इफ द रूट्स आर सेम, so 3 root 6 plus 4 root 6 it will be added because the variables are same, so it will be 7 root 6. बट अगर ये वेरिएबल अलग होता तो ये ऐड नहीं होता, राइट। तो देखो ऑप्शन कौन सा होता है, ये ऑप्शन होगा 7 root 6, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 7, रूट 6 इंटू रूट 27, तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। रूट 6 को तुम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, या तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, राइट। मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो यू कैन राइट लाइक दिस 6 इंटू रूट ओवर 27, मल्टीप्लाई है तो लिख सकते हैं इसका। फिर इफ आई ब्रेक दिस 6, तो आई कैन ब्रेक दिस 6 एज 2 इंटू 3 एंड 27 को ब्रेक कर सकता हूँ तो 3 इंटू 3, ठीक है। तो देखो इसमें किसका किसका प्यार होता है वो बाहर आ जाएगा। तो ये 4 3 आ रहा है, ठीक है। तो 4 3 का 2 3 बाहर आएगा, तो 3 इंटू अंदर रहेगा रूट ओवर 2, सो इट विल बी 6 रूट 2, आंसर विल बी 6 रूट ओवर 2। ओके, सिंप्लीफाई कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको क्या करना है। तो ये ऑप्शन यू सी 9 रूट ओवर 2, 9 रूट ओवर 2 इज, और सॉरी मैंने मिस्टेकली बोल दिया 3 इंटू 3 इंटू रूट 2 था ना आंसर, तो 3 3 9 होगा, तो 9, सॉरी अगेन आई एम राइटिंग 6 ओनली, 9 रूट ओवर 2, सो ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल इरेशनल नंबर। तो देखो एक ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही कि रेशनल आइडेंटिफाई करने देगा। तो यहाँ पे देखो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है वो इरेशनल है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो रूट ओवर 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिकॉज 225 15 का स्क्वायर रूट है। और ये तो नंबर रूट में नहीं है बट ये टर्मिनेट हो रहा है, बिकॉज जब याद रखना एक चीज़, इरेशनल वही नंबर है जो जिसका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, एज वेल एज ऐसा वैल्यू जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, ठीक है, जो रूट के बाहर नहीं आ सकता, वो इरेशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये टर्मिनेट हो चुका है तो ये इरेशनल है, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा तो ये भी रैशनल है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर रूट 23 का नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 इज
सो यहाँ पे देखो 2 एंड 2.5 के बीच में जो इरेशनल नंबर है, यहाँ पे तुम चेक करो, तुमको 2 एंड 2.5 के वैल्यू का के बीच में नंबर चाहिए। बट यहाँ पे अगर रूट ओवर 11 में चेक करो, रूट ओवर 11 3 से ज़्यादा होगा, बिकॉज रूट ओवर 9 ही 3 होता है, तो 11 समथिंग 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये तो रिजेक्ट हो गया नंबर ए। यहाँ पे रूट ओवर 5 हमको पता है रूट ओवर 4 इसका क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर 2 होते हैं, तो 5 2 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। 2.5 को क्रॉस नहीं करेगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो मेरा पब्लिक क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ये एजम्पशन से करना, सॉल्व नहीं करना है, एमसीक्यू है ये, तो देख लेना, बिकॉज ये तो और बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, ये भी 3 से क्रॉस कर जाएगा, तो ये भी बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। तो 2 एंड 2.5 के बीच में जो वैल्यू आएगा वो रूट ओवर 5 का इरेशनल नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 10 टाइम्स रूट ओवर 15 इज, तो टाइम्स का मतलब क्या होता है, इनटू, राइट। तो रूट ओवर 10 इनटू रूट ओवर 15 क्या आएगा, देखो, तो इफ आई ब्रेक फर्स्ट यू राइट लाइक दिस, रूट ओवर 10 ये मल्टीप्लाई है तो एक सिंगल रूट में आ जाएगा ये ना। इफ आई ब्रेक रूट ओवर 10, तो इसको ब्रेक कर सकता हूँ मैं 2 इंटू 5 एंड 15 को 3 इंटू 5। देखो किसका पेयर बनता है, 5 का पेयर बन रहा है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा और ये तो अंदर ही रहेगा, 2 3 जा 6, तो 5 रूट 6, तो 5 रूट 6 ऑप्शन नंबर ए। ओके, next question, let us see the decimal expansion of a rational number. Yes, very interesting and important also. The decimal expansion of a rational number is, कोई भी rational number अगर हुआ उसका decimal expansion क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग, आई एम सॉरी, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, याद रखना, ऑल ऑफ यू रिमेंबर। हाँ, अगर ये रेशनल होगा तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा आइदर टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, ठीक है, बिकॉज इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द डेसिमल एक्सप्रेशन मैंने दिया है, ये इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन पूछा तो ये कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे देखो, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा, राइट। ऑलवेज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट, ओके। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, एंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ओके। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आइदर सॉरी 13, अ पॉलिनोमियल विथ 1 डिग्री इज कॉल्ड। सो डिग्री के हिसाब से जो पॉलिनोमियल होगा उसका जो डिग्री 1 होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर। देन अगर ये डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होता तो क्वाड्रेटिक, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 होता तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ठीक है, सॉरी क्यूबिक। डिग्री के हिसाब से लीनियर 1 को, क्वाड्रेटिक 2 को एंड क्यूबिक 3 को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये मोनोमियल तो इन टर्म्स ऑफ टर्म होता है, बाइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रूट ओवर 3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो ये देखो ये कंस्टेंट टर्म है, रूट ओवर 3 क्या होता है, कंस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो कंस्टेंट टर्म का जो डिग्री हमेशा 0 होता है, राइट, याद रखना। डिग्री ऑफ अ कंस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, रिमेंबर दैट। कोई भी नंबर दे देगा यहाँ पे, रूट ओवर 3 5 6 6, तो ये सारा कंस्टेंट है, तो कंस्टेंट का जो भी तुम्हारा डिग्री होगा क्या होगा, विदाउट वेरिएबल वाला, यानी कोई भी नंबर दे दे तुमको उसका डिग्री क्या लिखना है, 0, ठीक है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 7x टू द पावर 5 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज डैश। तो यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर कोई एक्सप्रेशन तुमको दे दे ऐसे और तुमको बोले इसका डिग्री क्या है, तो देखना द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। अगर ये सिंगल वेरिएबल का है तो इसका जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही इसका डिग्री होता है। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये एक्स की पावर 5, तो 5 इसका डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो यानी कि सिर्फ नंबर 0, ये 0, इसका कोई डिग्री नहीं होता, तो क्या होगा, डिग्री ऑफ ए डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है अभी तक, ठीक है, याद रखना तुम लोग। द डिग्री ऑफ अ कंस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होता है, बट द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, नॉट डिफाइन, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 7x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 when x equals to minus 2. So just put it in place of x, you put it minus 2 and see what is the value you'll getting. So if I put here 7 minus to the power 4 plus 3 minus 2 to the power 2 minus 4, तो यहाँ पे 2 to the power 4 यानी कि 16, और ये प्लस 16 हो जाएगा बिकॉज ये इवन है, तो 7 इंटू 16 प्लस ये भी प्लस हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 4, तो 7 16 जा कितना हो जाएगा, 16 7 जा तुम्हारा 42 एंड 70, 16 17 जा योर इट विल बी 16 7 जा 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7 4 11 112, इट विल बी 112 प्लस 12 माइनस 4, ठीक है।
यानी कि 124 120 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर हाउ टू सॉल्व दिस। सो 120 112 here and plus 12 124 minus 4, so it will be 120. So see the option out here, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी 120. ओके नेक्स्ट, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल माइनस 9x प्लस 9 इज, तो जीरो निकालना है तो जस्ट इसको इक्वल्स टू जीरो करके इसका वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे क्या होगा, -9x प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो, इसका जीरो निकालना है। तो एमसीक्यू है तो जस्ट एमसीक्यू की तरफ से बस x का वैल्यू निकालना है, तो नंबर को उधर भेज दो। -9x इक्वल्स टू -9, तो x इक्वल्स टू -9/9, -9/-9 इट विल बी 1. ओके, सो सी ऑप्शन हियर, the correct option will be 1. Then root over 12 into root over 15, so just simplify it, root over 12 into root over 15 सिंप्लीफाई करेगा तो ये रूट ओवर 12 को लिख सकता है 2 इंटू 2 इंटू, अच्छा पहले इसको ऐसे लिख लेता हूँ, रूट ओवर 12 इंटू 15 ऐसे लिख लो, फिर अंदर में ब्रेक करो इसको, तो 12 को 2 इंटू 3 और यहाँ पे 3 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो बाहर आएगा 2, ये 3 और रूट ओवर 5 अंदर रहेगा, ठीक है। तो 6√5 इज द आंसर। ओके, तो सी द ऑप्शन 6√5, यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, इफ x y टू द पावर 97 प्लस 97 इज डिवाइडेड बाय y प्लस 1 देन द रिमाइंडर इज, तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम करना है एमसीक्यू मेनली, तो क्या करना है तुमको, इसको px ले लेना है और इसका जीरो निकाल के इसमें पुट कर देना है, तो लिख लेना, बस सॉल्व भी करना है इसको, ठीक है। तो लिखना लेट p of x इक्वल्स टू y टू द पावर 97 प्लस 97 और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है y प्लस 9 और नाउ लिखना, नाउ y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, तो y इक्वल्स टू -1 तुमको यहाँ पे पुट करना है। तो -1 अगर पुट करेगा तो -1 टू द पावर 97 क्या होगा, -1 ही होगा प्लस 97, ठीक है। तो -1 प्लस 97 क्या हो जाएगा, 96 प्लस 96, तो हियर प्लस 96 द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम वही क्वेश्चन है कि अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, पहले इसको px ले लो, ये वाला वैल्यू को px ले लो, तो इफ आई टेक दिस वन एज px, तो विल राइट हियर p ऑफ x इक्वल्स टू 2x² प्लस kx, ठीक है। और ये जो वैल्यू दिया है इसका जीरो निकालो और लिखना, नाउ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -1। अब तुम यहाँ पे डालना है, यहाँ पे x जहाँ जहाँ x है वहाँ पे तुमको जीरो डालना है, -1 डालना है, तो 2 -1 होल स्क्वायर प्लस k -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज उसका जीरो है। तो 2 टू द पावर -1 तो 1 ही होगा, 2 1 क्या हो जाएगा 2, और ये जो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -k इक्वल्स टू 0, बस तुमको 2 को उधर भेजना है तो आ जाएगा तुम्हारा -k इक्वल्स टू -2, माइनस कैंसिल, तो k इक्वल्स टू 2। ओके, सो द आंसर विल बी 2, सो सी द ऑप्शन आउट हियर, द ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 992 minus 9, अच्छा it is not 992, it will be 99 square, okay, by mistake I have given like this, so it will be 99 square minus 98 square, okay. So put in the formula, all of you know that a plus b, a minus b, a square minus b square है ना, तो a plus b and a minus b, a minus b, तो 99 प्लस 198 कितना होगा, 197, और ये हो जाएगा 1, तो 197 इंटू 1 इज 197, सो ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके, नेक्स्ट लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज, तो वन ऑफ द फैक्टर में देखो इसको एक्सपेंड करेगा तो यू विल खुद ही समझ में आ जाएगा तुमको करना है क्या इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका फैक्टर में ये तो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता, बट दिस वन कैन बी एक्सपेंडेड, राइट। सो इफ आई एक्सपेंड तो सी, ये तो हो जाएगा 1 + 7x होल स्क्वायर, राइट। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इधर, तो यहाँ पे मैंने अगर इसको 49 स्क्वायर को अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने 7x होल स्क्वायर
और -1 को 1 स्क्वायर मैं मान सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर एक्सपेंड इसको सेम रखो, ये 1 + 7x ही रहेगा होल स्क्वायर, और इसको अगर तुमने कॉम इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये हो जाएगा 7x + 1 और ये 7x -1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फैक्टर 7x + 1, ठीक है। बिकॉज देखो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये भी प्लस था, तो ये दोनों में कॉमन है 7x + 1, तो ऑप्शन विल बी 7x + 1। बस इतना ही निकालना है कि कॉमन फैक्टर क्या, अभी कॉमन निकाल दिया तो हो जाएगा आंसर। तो 7x + 1 हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो 7x दोनों में कॉमन जो था, ये वाला में जो कॉमन है उसका फैक्टर वही होगा, तो 7x + 1 होना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन इज मिसिंग, सो दिस वन विल 7x + 1 में भी, ठीक है। प्लीज करेक्ट इट। नेक्स्ट द फैक्टराइजेशन ऑफ 6x² + 11x + 3। सो जस्ट मिडिल टर्म इट, इसको मिडिल टर्म कर दो, तो 6 3 × 18, 18 के टेबल में प्लस करके 11 लाना है तुमको, तो कैसा होगा 6x² प्लस 9x + 2x को कर सकता हूँ, ठीक है, प्लस करके 11 आ जाएगा। फिर कॉमन ले लो, डायरेक्ट कॉमन, इधर में कॉमन होगा 3x कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x + 3, और यहाँ पे कॉमन होगा तुम्हारा 1, तो ये हो जाएगा 2x + 3। सो हो गया तुम्हारा 3x + 1 और इंटू 2x + 3। तो देखो क्या कौन सा ऑप्शन होता है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर, x² - 2x इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और नन ऑफ दिस। तो ऑल वी कैन से कि इसमें वेरिएबल कितना इन्वॉल्व है, वेरिएबल एक ही वेरिएबल है x, तो इट इज इन वैल्यू इन 1। नेक्स्ट 25 the coefficient of x² in the given polynomial. So the coefficient is, see the question 3x³ + 2x² - x + 1, एक ही वेरिएबल वाला है, तो इसका जो कोफिशिएंट x² का, तो जो x² के साथ जो नंबर है वो देखो क्या है, तो x² का जो नंबर है वो क्या है यहाँ पे, वो है 2 + 2, तो ये ऑप्शन होगा बी 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20 इन द फॉलोइंग। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल मतलब एक टर्म वाला, ठीक है, सॉरी 2 टर्म वाला, ठीक है। तो एनी द पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। तो उसका जो डिग्री 2 है, 2 टर्म पहले होना पड़ेगा और डिग्री 20 होना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो 2 टर्म वाला, ये तो 2 टर्म है बट इसका डिग्री 20 नहीं है, ये भी 2 टर्म है बट ये डिग्री 20 नहीं है, ये वाला देखो 2 टर्म है और इसका जो वेरिएबल है उसका डिग्री 20 है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 27 x² - x इज अ डैश पॉलिनोमियल। सो देखो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑप्शन दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ टर्म दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे जो यहाँ पे ऑप्शन है वो इन टर्म्स ऑफ डिग्री है, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिग्री, यहाँ पे इसका डिग्री आइडेंटिफाई करो, ये पॉलिनोमियल है डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक, राइट। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ f(x), एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और x की जगह -1 डाला है, ऐसा मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे बस x की जगह तुमको -1 डालना है, तो जस्ट डाल दो 5, x की जगह -1 डालना है, -4 -1 स्क्वायर +3, तो इसका वैल्यू निकाल दो, ये हो जाएगा -5 और ये तो हो जाएगा -4 + 3, तो ये हो जाएगा -9 + 3 -6। सो ऑप्शन विल बी -6। तो -6 सीधा ऑप्शन -6 कहाँ पे है, ये जो भी -6 होगा वो आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे -6 नंबर सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, सो इट विल बी, तो ऑलरेडी ये मैंने ऊपर डिस्कस किया, रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर, इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ k। ये ऐसा भी किया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलना ही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जैसा। तो तुम इसको p ऑफ x ले लो, तो p ऑफ x = 2x² + k ऑफ x, और x + 1 = 0 ले लो, तो x हो जाएगा -1। अब इसको तुम यहाँ पे पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 -1 स्क्वायर + k -1 = 0, 0 आंसर आएगा। तो ये तो स्क्वायर है तो ये 2 हो जाएगा, ये -k = 0, 2 को भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा -k = -2, माइनस कैंसिल, तो 2 इज द आंसर। सो ऑप्शन विल बी सी, वेयर इज 2, यस दिस इज द आंसर। देन 31 इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग,
So here given is a by b is equals to a by b plus b by a equals to 1 and into prove this or find the value of this. Okay, तो just take LCM of here, जो given है उसका LCM ले लो. a by b प्लस b बाई ए, इसका अगर मैंने इक्वल्स टू -1, इसका अगर मैंने एलसीएम लिया, सॉरी -1, इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा ए बी, राइट. तो यहाँ पे हो जाएगा बी कैंसिल, ए का टेबल में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1. यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि -ab. ये हो गया, इसको इक्वेशन मार्क कर दो, ठीक है. यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, -ab, ठीक है. अब अगर जो वैल्यू निकालना है ये वाला नोट कर लेना तुम लोग, और इसके बाद तुम लोग ये जो गिवन एक्सप्रेशन है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको एक्सपेंड करो. ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब, आई थिंक सो. इफ यू डोंट नो देन आई विल शो यू. तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है तुम्हारा ना, ये वाला लिखिएगा. उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी, या प्लस बी स्क्वायर लिख दो, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है. और मुझे पता है ये वाला मैंने ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया था वहाँ पे. तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या था, -ab. और यहाँ पे प्लस ए बी ऑलरेडी है, तो ये जो प्लस ए बी और माइनस ए बी ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0, और 0 इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 0. सो आंसर विल बी 0, दैट a क्यूब minus b cube equals to 0. Okay, hope you understood. Thank you for watching my video. Do subscribe my channel. One more video of mathematics I will upload today late night, so do watch, and all the best for your exam. Thank you.